Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on philology second part, and today we will talk about some other influences on English language. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. Good evening Vedyasji, welcome. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Good evening, Papdi. Welcome. So today we will, in yesterday's class, we have discussed Latin influence on English language and the influence of Bible. And we have also talked about slang words. So in today's class, we will talk about the influence of Christianity in general on English language, the French influence, and a particular term, that is the inkhorn term. Okay. So let's start today's class. First topic is influence of Christianity in English language. We have talked about the contribution of some specific translation of Bible. Translators of Bible like William Tyndale, Miles Coverdale, and the author of the standardized version of the Bible, King James the First. So in today's class, we will talk about the overall influence of Christianity on English language. So let's start. So you can easily understand that Christian influence started when Christianity came to England through the hands of Saint Augustine, you all know, and वो year कौन सा था 597 AD. Okay, so this is the official introduction of Christianity. But before that, we also got some Christian terms if we read Buell. तो ब्यूल्स में भी कई सारे क्रिश्चियन टर्म्स का यूज हमने देखा है, तो इट वाज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और एनीथिंग, बट क्रिश्चियनिटी के साथ कनेक्टेड कुछ टर्म्स हमें मिला, ठीक है. बट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में हम बात करेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर 597 एडी, व्हेन द नंबर इंक्रीज. क्रिश्चियनिटी जब ऑफिशियली इंट्रोडक्शन उनका हुआ, मिशनरीज आए, तो उस टाइम में बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड किया गया है फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. तो हम उसी टाइम को एनालाइज करें. 400 Latin words were incorporated into English before Norman conquest. Good evening, Cherry. Welcome. So 400 Latin words were incorporated in English before Norman conquest. ठीक है. अब देखो ओवरऑल क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस कैसा है. एंग्लो सेक्शन वर्ड ये बहुत कॉमन था एंग्लो सेक्शन टाइम में, तब तक क्रिश्चियनिटी मतलब पूरा का पूरा ऑफिशियल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ. उस टाइम में ये वर्ड भी पॉपुलर था, एपोस्टल, बिशप, मॉन्क, डिसाइपल, प्रीस्ट, directly associated with religion. Then terms of religious institutions ये बहुत popularly आए जब Christianity officially आया था, like altar, shrine, candle, mass. These are some of the terms associated with religious institutions. उसके बाद आते हैं some words of daily use. ये भी आया है after the introduction of Christianity. तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, देखो हम डेली यूज करते हैं, लाइक द वर्ड बॉक्स, सिल्क, मैट, ऑयस्टर, चेस्ट, प्लांट, कैप. बॉक्स, कैप, सिल्क ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, बट दे ऑल हैव कम फ्रॉम क्रिश्चियनिटी. देन क्रिश्चियन वर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ये क्यों आए थे, हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि बाइबल वाज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एजुकेशन एट दैट टाइम.
तो इसीलिए बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड क्रिश्चियन वर्ड्स आया है बाइबल से, जैसे स्कूल, ग्लॉस, ग्रामेटिकल, मास्टर वर्ड्स। तो स्कूल, मास्टर, ये जो बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश वर्ड है वो एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी के बाद आए। देन सम ऑफ द डेली यूज एंड वेरी कॉमन वर्ड्स लाइक फैन, आप फैन चलाते हो वो भी क्रिश्चियनिटी का कंट्रीब्यूशन है। फैन, एंकर, स्पॉन्ज, टैलेंट, टैलेंट भी हमारे पास नहीं होता अगर क्रिश्चियनिटी नहीं होता तो, राइट। सर्कल एंड ऑल्सो प्लेस, दीज आर ऑल क्रिश्चियन वर्ड्स जो इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके। गुड इवनिंग एलिना, वेलकम। ओके, तो देन कुछ ऐसे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स फॉर्म हुआ था यूजिंग सम एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एंड सम एलिमेंट्स ऑफ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मीन्स जो ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश था जब क्रिश्चियनिटी नहीं आए थे, तो उसको हम कहते हैं नेटिव लैंग्वेज। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हमें मिला है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कुछ नए वर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, नेटिव एंडिंग्स प्लस फॉरेन वर्ड्स। नेटिव एंडिंग, तो डम इज अ नेटिव एंडिंग एंड क्रिश्चियन इट इज अ फॉरेन वर्ड, दोनों को मिलाकर बना है क्रिश्चियन डम। सिमिलरली बिशॉप प्लस हुड इज इक्वल टू बिशॉप हुड। यस, तो देन क्या है, ये तो एक टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप में है कि मीनिंग्स ऑफ नेटिव वर्ड्स वर मॉडिफाइड। यस, you all know that the words which we used during the time of Anglo-Saxon age, its spellings were different. It had some Scottish or Danish touch, and also Latin भी था। तो उसके बाद जब चौसर के टाइम में या फिर उसके भी बाद जब एलिजाबेथन टाइम का इंग्लिश हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखो स्पेलिंग में कई सारे चेंजेस आए। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट द मीनिंग्स ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स हैव ऑल्सो बीन चेंज्ड, ठीक है। तो देखो कैसे चेंज हुआ है। गुड इज द ओल्ड इंग्लिश वर्ड जहां से आपका गॉड आए, ठीक है, गॉड इज अ मॉडर्न वर्ड। देन विटिगा, इट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, एंग्लो सेक्शन एज में यूज होता था, जिसका मॉडर्न फॉर्म है प्रिस्ट। फूड, इट इज एन एंग्लो सेक्शन वर्ड, अभी यूज नहीं होते, दीज आर ऑब्सोलेट, इसका मॉडर्न फॉर्म है ऑल्टर। So these are some of the examples where the meanings of native words were modified. उसके बाद क्या है, न्यू वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज, नए वर्ड भी फॉर्म हुआ था। वो कैसे हुआ था, जैसे देखो एंग्लो सेक्शन एज में था थ्रीनेस, जिसका मॉडर्न फॉर्म है ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी हम कहते हैं, तो ये वहीं से आए। देन गुड स्पेल, ये एंग्लो सेक्शन एज का वर्ड था, इसको बाद में मॉडर्न इंग्लिश में हो गया है गॉस्पेल। ओके, देयर आर ऑल्सो सम न्यू साइंटिफिक टर्म्स फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। ये देखो बड़ा अजीब नाम है, एस्ट्रोनॉमी, जो आप मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं, इट्स एंशियंट नेम वाज टुंगल क्राफ्ट। क्राफ्ट का स्पेलिंग यहाँ पर होगा ए के साथ ई, टुंगल क्राफ्ट। मेडिसिन का, मेडिसिन मॉडर्न इंग्लिश है, उसका ओल्ड इंग्लिश फॉर्म था लेसर क्राफ्ट, यहाँ पर भी बात सेम है, ए के साथ ई, लेसर क्राफ्ट। So these are the scientific terms जो create हुआ था after the introduction of Christianity. Okay, so this is about Christian influence. हमने कुछ चीजें कल की क्लास में बताए थे। So this is in general कि कौन कौन से वर्ड आए थे after the introduction of Christian. Okay, then we will come to the next topic which is very very important, that is French influence. फ्रेंच इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है इंग्लिश में, लैटिन एंड फ्रेंच ये दोनों सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस कब स्टार्ट हुआ था आप सब जानते हो, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट दैट आफ्टर द वॉर फ्रेंच हैज बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश को हमने सबड्यू किया था टू द लैंग्वेज ऑफ द laborers or the workmen, but French था aristocratic language, official language। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद कई सारे फ्रेंच वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हुआ एंड इट इज अ वेरी ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच।
Yes, absolutely right, Papi. Chaucer's English is not easy, and you can also find that some of the spellings जो हम modern age में मतलब अभी हम क्या use कर रहे हैं, उसका जब old form हमें देखने को मिलता है, we cannot even identify the word. ठीक है, तो ऐसे तरीके से लिखा गया है कि हमको पता ही नहीं। ज्यादातर आप देखोगे कि आई के जगह वाई का इस्तेमाल उस टाइम में ज्यादा होता था। जैसे हम अभी लिखते हैं वाइज, तो उस टाइम में स्पेलिंग था ऐसे वाइज। तो इस टाइप का बहुत आपको मिलेगा वर्ड इन कैंटरबरी टेल्स, कि जब हम आई यूज करते हैं जिस जगह में, वो पहली टाइम में उसमें वाई लिखा होता है। ये बहुत कॉमन। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड अनदर फीचर, दैट इज एन एक्स्ट्रा ई। एक्स्ट्रा ई इज एडेड। ठीक है, अभी अगर हम लिखते हैं हैप्पियर, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम ऐसे लिखते हैं हैप्पियर। इसको अगर आप ओल्ड इंग्लिश फॉर्म में देखोगे तो लास्ट में एक ई और है, इस टाइप का वर्ड आपको मिलेगा। तो इट डजंट मीन दैट द स्पेलिंग इज रॉन्ग, उस टाइम में वही करेक्ट। ठीक है, और आज के टाइम में ये ई हमने ऑब्सोलेट कर दिया, तो एक्स्ट्रा ई ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा वाई मतलब आई के जगह वाई आए हैं। ठीक है, so this is very true, and you can easily understand if you read just a prologue portion of the Canterbury Tales. Okay, so coming back to French influence, तो ये एक बहुत ही famous quotation है रॉबर्ट ऑफ ग्लॉसेस्टर का। Unless a man knows French, one counts of him very little. So that much prestige was given to French language, कि अगर French नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है at that time. Okay, तो आफ्टर फ्रेंच अराइवल हाँ, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है, बिफोर द अराइवल ऑफ फ्रेंच, इंग्लिश वाज मच प्योर टंग with a slight touch of Latin, Celtic and Danish word. Pure language ही था, but after the introduction of French, it totally became a hybrid language. वो कैसे बना, हम अभी आगे देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड आए फ्रेंच से। देखो कौन कौन से वर्ड आए, यस दाई। हाँ, तो ये तो लैटिन है, मैंने जैसे बताया। ओके, तो अब देखो कौन कौन से टर्म आए हैं फ्रेंच से। जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड टर्म्स है, दोज आर ऑल फ्रेंच वर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टेट, हम देखो कितना यूज करते हैं ये वर्ड, स्टेट, रियल, नेशन, काउंसिल, अथॉरिटी, क्राउन, एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्टर। इन वर्ड अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट ही नहीं चलता। तो जितने भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टर्म्स है वो फ्रेंच है। द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या है, फ्यूडलिज्म। यू ऑल नो दैट एट दैट टाइम फ्यूडलिज्म वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टम। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ था उस टाइम में, एंड फॉर दैट मैटर सम न्यू वर्ड्स केम, लाइक ये भी हम बहुत यूज करते हैं, लाइक प्रिंस, पियर, ड्यूक। शेक्सपियर का प्ले तो ड्यूक के सिवा बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ड्यूक वर्ड फ्रेंच वर्ड है। लॉर्ड, आर्ल, आर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, आर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। तो आर्ल भी एक बहुत कॉमन वर्ड है, बट इट इज अ फ्रेंच वर्ड। देन काउंटेस, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, राइट। फ्यूडल, दीज आर ऑल फ्रेंच वर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो जितने भी लीगल टर्म्स हम यूज करते हैं वो सभी फ्रेंच है। कैन यू इमेजिन, इंग्लिश का कुछ भी नहीं है, सब फ्रेंच है। देखो जस्टिस, जूरी, कोर्ट, अटॉर्नी, पेनल्टी, इवन क्राइम, प्रिजन, डिफेंड, एयर, जितने भी लीगल टर्म्स है वो सभी के सभी फ्रेंच है। रिलीजियस वर्ड्स भी आए जो बाइबल के साथ एसोसिएटेड है, लाइक सार्मन, मिराकल, प्रे। हम प्रे भी करते हैं, वो भी फ्रेंच हेल्प से। ठीक है, सेंट, प्रायर, ऑल्टर, एंजल, दीज आर ऑल फ्रेंच वर्ड्स, राइट। देन आते हैं कुछ एथिकल वर्ड्स, सोसाइटी, एथिक्स के साथ रिलेटेड, लाइक वर्च्यू, वाइस, चेस्टिटी, ड्यूटी, जेलसी, डिसिप्लिन। ये सारे के सारे वर्ड फ्रेंच। ठीक है, तो ये वर्ड तो था, इसके साथ और भी है। उस टाइम में क्या था कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, द फ्रेंच पीपल बिकेम द मोस्ट पावरफुल पीपल, so they became the boss and English were their servant. तो इस रिलेशनशिप के कारण, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के कारण बहुत सारे वर्ड बना था, जो आप देखो आज
अभी डेली यूज कर रहे हो, लाइक सर एंड मैडम, आप पूरे दिन में कितने बार इस वर्ड को बताते हो, सर एंड मैडम, बट यू डोंट इवन नो दैट दीज वर्ड्स आर फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, यस यस एब्सोल्युटली राइट चेंज। 30% क्या, उससे भी ज्यादा शायद डायरेक्टली फ्रेंच से आए। तो देखो सर मैडम, ये तो मतलब हम डेली सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों वर्ड को यूज करते हैं, बट दीज टू वर्ड्स आर फ्रेंच। रिच पुअर इवन मनी, इसके सिवा एक पल भी हमारा नहीं चलता, वो है मनी। मनी भी फ्रेंच है। ठीक है, सर्वेंट, कमांड, पॉवर्टी, दीज आर ऑल फ्रेंच वर्ड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखो फैमिली रिलेशनशिप, ये सब फ्रेंच वर्ड है। अंकल, आंट, नीस, कजिन, मतलब फैमिली ही नहीं बनता इंग्लिश पीपल का अगर फ्रेंच नहीं होते हैं। अब समझो कि कितना गहरा इन्फ्लुएंस है फ्रेंच का। देन देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जितने भी हम यूज करते हैं वो सभी के सभी फ्रेंच वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कलर, डिजाइन, ब्यूटी, इमेज, पैलेस, कासल, ये तो है ही, कासल, टावर, पेंट, टेलर, आप जिसके पास कपड़े बनाते हो वो भी फ्रेंच है। ठीक है, तो टेलर, मेसन, कारपेंटर, दीज आर ऑल फ्रेंच वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ड्स एसोसिएटेड विद प्लेजर्स ऑफ लाइफ। द वर्ड प्लेजर इटसेल्फ इज अ फ्रेंच वर्ड, joy is a French word, delight, comfort, ease, sports, chase, dice, जितने भी गेम्स है वो सभी फ्रेंच है। एंड फाइनली ऑल्सो द ओवरऑल फैशन, फैशन के साथ जुड़े हुए वर्ड्स भी फ्रेंच वर्ड्स है, लाइक ड्रेस, गारमेंट, कॉस्ट्यूम, कितना हम यूज करते हैं, लग्जरी, फैशन, these are all French words. Yes, right, Papi. I'm just going to tell you that all the words related to food have come from French. And Otto Jesperson has made a brilliant comment on that. हम उससे भी बात करेंगे at the end of this influence. तो ये एक बहुत पॉपुलर कमेंट है, जॉन वालिस ने बताया था कि एनिमल्स आर इंग्लिश व्हेन दे आर अलाइव, बट आफ्टर डेथ दे बिकम फ्रेंच। वेरी फनी बट वेरी ट्रू, कि जब वो जीवित रहता है तब वो इंग्लिश है, लेकिन जब उनका डेथ हो जाते हैं तब वो फ्रेंच होते हैं। कैसे? देखो ये जो वर्ड्स हम कहते हैं, ऑक्स, काउ, काफ, डियर, गोट, दीज आर इंग्लिश वर्ड्स, बट जब इनका फ्लेश हम खाते हैं, मटन, बीफ, पोर्क, वेंशन, व्हील, दीज आर फ्रेंच वर्ड्स। बड़ा अजीब है। तो जॉन वालिस ने सही बताया कि एनिमल जब जीवित होते हैं तब वो इंग्लिश है, एंड जब उसका डेथ हो जाते हैं तब वो फ्रेंच बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड मेनी अदर फूड रिलेटेड वर्ड्स लाइक फ्राई, टोस्ट, रोस्ट, डिनर, सपर, इवन सॉस, आप सबको सॉस पसंद है, बॉयल, सभी वर्ड फ्रेंच है। Yes, Pabri, absolutely. So now we will also talk about some special words which are formed using a hybrid way, जिसमें इंग्लिश भी है और फ्रेंच भी। तो देखो कैसे बना, एक है इंग्लिश प्रीफिक्स प्लस फ्रेंच वर्ड। प्रीफिक्स है इंग्लिश का, वर्ड है फ्रेंच का। देखो द वर्ड पावर इज फ्रेंच, द वर्ड पावर इज फ्रेंच। ठीक है, उसके आगे जो प्रीफिक्स हम ऐड कर रहे हैं वो है ओवर, एंड टुगेदर एक कितना पॉपुलर वर्ड बन रहे हैं, ओवर पावर। हम ये बहुत बार हमने यूज किया है, ओवर पावर द थ्रोन, ओवर पावरिंग द किंग, स्पेशली फॉर राइटिंग द आंसर्स ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस, हमने कितने बार यूज किया है ओवर पावर। तो पावर इटसेल्फ इज अ फ्रेंच वर्ड, एंड ओवर उसके साथ एक इंग्लिश प्रीफिक्स है, दोनों मिलकर एक हाइब्रिड वर्ड बना है ओवर पावर। अनप्लीजेंट, अन इंग्लिश, प्लीजेंट इज अ फ्रेंच वर्ड, दोनों मिलाकर बना है अनप्लीजेंट। ग्रेट चेरी, दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके ऑपोजिट, फ्रेंच प्रीफिक्स प्लस इंग्लिश वर्ड। तो फ्रेंच प्रीफिक्स क्या है, देखो डिस, एंड बिलीव इज एन इंग्लिश वर्ड, दोनों मिलाकर बना है डिसबिलीव। सिमिलरली री प्लस बर्थ, री इज फ्रेंच प्रीफिक्स, बर्थ इज इंग्लिश वर्ड, जिसको मिलाकर बना है रीबर्थ। ठीक है, तीसरा टाइप क्या है, फ्रेंच वर्ड प्लस इंग्लिश सफिक्स। फ्रेंच वर्ड है कलर, अभी बताया, उसके साथ इंग्लिश सफिक्स लेस, कलरलेस। प्रीच प्लस इंग, प्रीचिंग। देन इंग्लिश वर्ड प्लस फ्रेंच सफिक्स, इंग्लिश वर्ड है माइल, एज,
देखो एज इज अ फ्रेंच वर्ड, ओके, इन दोनों मिलाकर बना है माइलेज। शेफर्ड प्लस एस, शेफर्ड। अच्छा, ये बहुत ही एक यूनिक एग्जांपल है जिसमें तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्ट इज अ स्कैंडिनेवियन वर्ड, ई इज अ फ्रेंच सफिक्स एंड शिप इज द इंग्लिश शब्द। तीनों वर्ड को मिलाकर बना है ट्रस्टीशिप। यस, ट्रस्टीशिप। तेरी सबको फ्रेंच सिखा देना, बिकॉज फ्रेंच इज ब्यूटीफुल। फ्रेंच लिटरेचर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, राइट? कितना फेमस राइटर्स हमें मिला है फ्रॉम फ्रेंच। ओके, अब ये देखो ऑटो जेस्पर्सन का जो कमेंट है, ऑटो जेस्पर्सन की बुक से मैंने ये कोट किया है। इट इज वेरी पॉपुलर एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इस कमेंट को। इट इट जस्ट टोटली सम्स अप द होल इन्फ्लुएंस। देखो जेस्पर्सन क्या कहे, इफ द इंग्लिश कैनॉट थ्राइव और डाई विदाउट द हेल्प ऑफ स्कैंडिनेवियन, दे कैनॉट मूव और एंजॉय विदाउट द हेल्प ऑफ फ्रेंच। सही बात है, एंजॉयमेंट ही जिंदगी में नहीं होता अगर फ्रेंच ना होता। दे कांट बी श्योर ऑफ देयर पोजीशन, लाइफ में कोई सियोरिटी, कोई गारंटी ही नहीं होती। ऑनेस्ट इन देयर बिहेवियर, without the help of the French, the English word would have no comfort, no pleasure, not even success. Success is also a French word, ठीक है? तो अगर आपको एग्जाम में सक्सेस मिलता है, सो सैल्यूट टू द फ्रेंच पीपल कि उन्होंने ये वर्ड इंग्लिश को दिया गया है, अदरवाइज सक्सेस ही नहीं होता लाइफ, ठीक है? तो इट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड एस्टोनिशिंग टू कि कंफर्ट, प्लेजर, सक्सेस, ये इंग्लिश लोगों के पास होता ही नहीं अगर फ्रेंच पीपल नहीं आते थे। अब देखो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कितना बेनिफिशियल है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? So this is about French influence, which is the most important and most interesting. Okay. Next and last topic of today's class, that is inkhorn terms. एक particular word है, जैसे हमने कल slang words की बात की, वैसे ही inkhorn terms. So what is the name inkhorn mean? Actually, the word inkhorn means an inkwell made out of horn. एक ink रखने का एक जगह, ठीक है? And it becomes an important item for scholars and writers. In Bengali, we call it as doa. So at that time, there was no pen like this, so we have to use ink pen. तो उसमें क्या होता था कि इंक में डुबोकर आपको लिखना होता, तो एक इंक पॉट हमेशा अपने साथ कैरी करना होता, ठीक है? तो वही इंक पॉट को हम कहते हैं इंक हॉर्न, and later it became symbolical for scholars and writers. And it also became a byword for pedantic writers. अब ये तो in general meaning. Now in right, in philology, inkhorn का क्या meaning? Inkhorn terms means it refers to any foreign borrowing into English or a word created from an existing word roots by an English speaker deemed to be unnecessary or overtly pretentious. तो कुछ ऐसे वर्ड फॉर्म हुआ है जो कि फॉरेन वर्ड से लिया गया है, बट इट हैज सम नेटिव एलिमेंट आल्सो, एंड वो आज उतना ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है? दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन 1553 इंडिया तोरी तो एब्सोल्युटली, द टर्म वाज कॉइन्ड इन 1553 and this term became very popular during the transition from middle age to modern English. मिडिल एज टू मॉडर्न इंग्लिश मीन्स फ्रॉम मिडिल एज टू एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को हम कहते हैं द अर्ली मॉडर्न एज, राइट? तो एक्चुअली एलिजाबेथन एज से जो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज है, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका जर्नी स्टार्ट हो गया है एंड वो आज भी चल रहा है, आज भी इंग्लिश मॉडिफाई हुआ, राइट? तो उसी ट्रांजिशन टाइम में इंक टर्म बिकेम वेरी पॉपुलर। तो कैसे ये पॉपुलर हुआ? बिकॉज एट दैट टाइम इंग्लिश वाज इन कॉन्टेस्ट विथ लैटिन टू बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस उस टाइम में उतना नहीं था, लैटिन एंड इंग्लिश के बीच में टक्कर चल रहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बने। अब इंग्लिश को उस टाइम में माने जाते थे लैंग्वेज ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, सो इंग्लिश इज वेरी लो। अगर कोई इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको अनएजुकेटेड माना जाता, याद कर उस टाइम। एंड अगर कोई लैटिन में बात कर रहे हैं तो मतलब वो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, तो इसीलिए लैटिन था ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश वाज डेस्परेटली ट्राइंग टू
gain that position. तो उस टाइम में many English writers use words borrowing from classical literature. ठीक है. Now many of those words were coexisted with native words and with the same or similar meanings and often supplanted them. आज अभी क्या है कि इंकॉन टर्म्स तो है बट वो कोई अलग से टर्म नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही मर्ज हो गया है. जैसे देखो कौन कौन से वर्ड है, आप कितने बार यूज करते हो. सेलिब्रेट, encyclopedia, commit, कैपेसिटी, इंजीनियस, डिसमिस, ये सारे के सारे इंकॉन टर्म्स है जो आज इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स अप हो. एंड these two writers, Thomas Eliot and George Pettit, they used it mostly. They used inkhorn terms mostly. एक और टर्म था जो था inkhorn term, expede, which is now obsolete. अभी नहीं है डिक्शनरी में. expede. और क्या क्या है देखो, कुछ नेटिव वर्ड से बना था inkhorn terms like gleeman for musician. gleeman आपको आप मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में देखोगे gleeman वर्ड का यूज है. सीकर मीन्स सर्टेनली, ये मॉडर्न फॉर्म है. ब्रैकेट के अंदर जो है वो मॉडर्न फॉर्म है, ब्रैकेट के बाहर जो है वो इंकॉन टर्म. इंटुइट, इंटुइट हम अभी यूज करते हैं इंटुइशन, तो एक्चुअली उसका मॉडर्न वर्ड है कॉन्साइंस. ठीक है. देयर आर आल्सो न्यू वर्ड्स फ्रॉम जर्मनिक रूट्स लाइक कंक्लूजन. कंक्लूजन भी इंग्लिश का नहीं, कंक्लूजन इज अ जर्मन वर्ड. जर्मन में उसका मीनिंग था एंड से. प्रॉफिट फ्रॉम फोरसेयर, anniversary for year time. So these are some of the inkhorn terms. Yes, absolutely right, Papri. Summoner says Latin words to show off his status and knowledge. उस टाइम में लैटिन में बात करना मतलब आप बहुत बड़े आदमी. Latin was the language of aristocracy, and that is why देखो जितने भी classical literature है वो सब लैटिन में लिखा गया, right? इंग्लिश का वहां पर कोई चीज नहीं है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है जरूर, and that is much later, but originally written in Latin. So this is about inkhorn term. Okay. So that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can. Yes, right, Papri, it is Charun Kobi, folk minstrel gleeman. Absolutely. So we will meet again Monday at 8:30 p.m. तो कल आपकी रिजल्ट है, उसके लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट. ठीक है. तो आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, फॉर योर पॉजिटिव न्यूज. ओके. So let's wait for tomorrow and let's hope for the best. Bye bye everyone. Good night. See you all Monday at 8:30.